Hello student, today I am going to teach you chapter 4 how the trades became rulers. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. On reading this story, Jay and Mithal were making fun of each other. Their class teacher who was sitting beside them said, "Children, this too is a policy. The third party takes advantage of a quarrel between the two. The British had expanded their empire in India with such a policy." Jay asked, "Sir, how is that possible?" The class teacher replied, "Let us go to the class and there I will explain about how the British came to India and established their rule over the Indians." Now, students, in this paragraph, you can see that these two children were talking, okay, about the story two cats and the monkey, and they were enjoying the story and they were discussing, and class teacher was beside them, and he told them that, okay, this is the policy, okay, two person were quarreling and third party is taking advantage. थर्ड पार्टी है वो उसका एडवांटेज लेती है कि कैसे दो झगड़ते हैं, ओके, क्वारल करते हैं और तीसरा फाई जाता है ऐसे। सो ये समझने के लिए क्लास टीचर टोल्ड टू देम कि लेट्स गो टू द क्लास में जाते हैं। और इन आर कंट्री ऑल्सो यू नो ब्रिटिशर केम इन आर कंट्री एंड दे एस्टैब्लिश देयर रूल्स एंड रूल ओवर द कंट्री। By the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on Indian political horizon. Do you know that the British came to India only for trade? Now student, you know कि Britisher came in our country for trading only. Means व्यापार के लिए ही वो लोग आए थे. But they rule over our country. वो व्यापार के लिए आए थे पर उन्होंने हमारे कंट्री में उनका राज जमाए रखा था. Initially they took permission to trade in Indian state. Then how did they become the rulers of entire India? The history of the British rule and arouses many such questions. To serve their economic interest, their increase their political hold on India with the use of British diplomatic. Okay, now students, see here, they came here for trade only, but they rule over in our कंट्री. वो व्यापार के लिए आए थे पर उन्होंने हमारे देश पे राज किया, रूल किया, ओके. बट दे नो द वीकनेस ऑफ आर कंट्री. वो हमारे देश की जो वीकनेस थी वो अच्छी तरह से वो पहचानते थे. एंड दे हैव टेकिंग द इंटरेस्ट टू इन आर इकोनॉमिक economic interest, and they increase their political hold on India, and they get benefit in this. Now student, Wellesley's policy of expansion. Now see here, we will see here Wellesley's policies expansion. उसकी जो पॉलिसी थी वो डे बाय डे कैसे बढ़ती रही वो हम देखेंगे. When Wellesley came to India as the governor जनरल, वेलेस्ली जो है वो हमारे देश में आया था, गवर्नर जनरल बन के आया था. एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एग्जिटेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. और तब क्या चल रहा था, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में जो कंपटीशन थी वो चल रहा था और उसमें कौन भागा, वेलेस्ली. इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम becoming powerful in India. So as to expand the British rule in India, Wellesley introduced a new plan which was known as a subsidiary alliance. Now students, see here, वो इंग्लैंड एंड फ्रांस दे बोथ वर क्वारलिंग विथ ईच अदर. ओके, वो दोनों के बीच में क्वारलिंग चल रहा था, कंपटीशन चल रही थी, ओके. एंड ड्यूरिंग दिस डेज वेलेस्ली इंट्रोड्यूस वन न्यू प्लान. एक प्लान उसने इंट्रोड्यूस किया एंड दैट प्लान वॉज सब्सिडरी अलायंस. लेट्स सी व्हाट इज द सब्सिडरी अलायंस. Now students, see here, subsidiary alliance means as we know कि Lord Wellesley introduced a new plan known as a subsidiary alliance to stop the French from becoming the strong power in India and to make British rule the supreme power in the native state of India. Now students, see the priceless trade.
that accepted this policy and to keep and maintain the British Army as well as have a British representative in royal court. And now student, this way the British could maintain their army without expending any money. ओके, ऐसे ही हमें पता चलता है ब्रिटिश ने जो उनकी आर्मी एक्सपेंडिंग की मीन्स ज़्यादा बढ़ाई स्प्रेडिंग की वो विदाउट मनी के अलावा. हाउएवर द princely state were not allowed to utilize the army at their own will. और ऐसे वो अपने खुद की आर्मी वो यूज़ नहीं कर सकते थे. This system which made many feel secure in a beginning made them feel unsettled and threatened. Subsidiary allowance acted like a slow poison for the princely state of India. This पॉलिसी इज कॉल्ड द पॉइजन स्लो पॉइजन. ओके, वो स्लो पॉइजन की और से भी जानी जाती है. मीन्स मीठा जहर, धीरे धीरे जहर दे के मीन्स पॉइजन मीन्स नॉट रियल जहर, रियल पॉइजन. ओके, पर धीरे धीरे उनको कट करना, धीरे धीरे उनको वहाँ से हटाना. The Indian state that became the victim of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gayakwars of Vadodara, Peshwas of Pune and सिंधियास ऑफ ग्वालियर. ये जो सब्सिडरी अलायंस है वो कहाँ कहाँ सक्सेस हुई है? मैसूर में, अयोध्या में, जोधपुर में, गायकवाड़ ऑफ इंडिया, पेशवा ऑफ पुणे और सिंधियास ऑफ ग्वालियर. नाउ स्टूडेंट्स, सी Nizam of Hyderabad was the first victim of Wellesley's subsidiary alliance. Okay, Nizam of Hyderabad के जो निज़ाम थे, he was the first victim. वो वेलेस्ली सब्सिडरी अलाउंस का जो पॉलिसी थी उसके फर्स्ट विक्टिम थे. देन इट वॉज मैसूर एंड अयोध्या. उसके बाद हु बिकेम मैसूर एंड अयोध्या. उनके बाद मैसूर और अयोध्या उसके विक्टिम हुए. तांजोर एंड कर्नाटका मेड विद द सेम फेट. और तांजोर और कर्नाटका वो भी उसमें आ गए. द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमोंग देमसेल्व्स एंड consequently made them accept the subsidiary alliance. Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. Okay, Nizam, as I told to you, okay, Nizam of Hyderabad, he was the first victim of this policy. Tipu Sultan of Mysore, and second who was Tipu Sultan in Mysore, refused to do so. But after the British victory in the fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become a subsidiary state. Now, first of all, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर उसने तो रिफ्यूज़ किया कर दिया था कि नो आई कांट डू दिस. बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री, ओके, ब्रिटिश उसके सामने जीत गए इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में. देन मैसूर वॉज फोर्स, मैसूर ने उसके ऊपर फोर्स किया टू बिकम अ सब्सिडरी स्टेट. मराठा चीफ फॉट अमोंग देमसेल्व्स आफ्टर द डेथ ऑफ नाना Fadnavis. One by one of the Maratha states become to victim of divide and rule policy of the British. ओके, वन बाय वन ये मराठा का जो स्टेट थे वो भी डिवाइड करो और रूल करो, ऐसी पॉलिसी में वो भी अंदर आ गए. तो ये सारे स्टेट डिवाइड कर दिए, मीन्स भाग उसको डिवाइड किया और उसके ऊपर राज किया. द अदर स्टेट नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तांजोर, कर्नाटका, फारुखाबाद also suffered the same fate. In this way, within a span of 7 years, okay, 7 years में ही Wellesley expanded the company rule and made the British the supreme power in India. Wellesley ने only 7 year में ही अपना राज वहाँ पे हमारे देश में कायम किया. ऐसे इसलिए हम वी कैन से कि द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया, वही हमारे देश में रूल करने के लिए उनको सक्सेस मिली. नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी हियर वन फिगर इज देयर 4.2, अ बैटल फॉट बाय वेलेस्ली. जो बैटल हुआ था वेलेस्ली में, ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ बैटल
battle fought by Wellesley, and this is the 4.3 figure is Lord Wellesley. ये लॉर्ड वेलेस्ली का पिक्चर है, चित्र है. नाउ एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ओके, ब्रिटिश रूल हमारे भारत देश में कैसे एक्सपेंशन हुआ, मीन्स डे बाय डे इंक्रीज हुआ. वी कैन सी हियर आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी अलायंस treaties with Mysore, Nizam of Hyderabad, and Maratha chieftains, the British moved towards northern part of India, and they entered into a treaty of friendship with Nepal. Okay, उन्होंने नेपाल के साथ फ्रेंडशिप की, and sensing a threat from it, they fought many battles to secure the frontiers and friendly relation with the Sikh king. उन्होंने सिख किंग के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए. एंड देन महाराजा रणजीत सिंह हेल्प देम टू विन द बैटल विद द अफगान्स एंड एस्टैब्लिश द रूल इन सिंध. ओके, महाराणा रणजीत सिंह था, उसने उनको हेल्प किया ये बैटल में विन होने के लिए. एंड फाइनली दे सक्सेस टू एस्टैब्लिश द रूल इन सिंध ऑल्सो. द ब्रिटिश हैड एन ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do so as long as Maharaja Ranjit Singh was alive. Okay, Sikh kingdom was a very powerful kingdom. वो तो बहुत ही पावरफुल किंगडम था, राज्य था, बट दे कुड नॉट डू सो. वो लॉन्ग टाइम तक वो नहीं रहा, बिकॉज एज लॉन्ग एज महाराजा रणजीत सिंह वॉज अलाइव, क्योंकि वो अलाइव था. So they kept friendly relations with Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh was a strong ruler of that time. Okay, and वो वहाँ पे अपना राज नहीं जमा सके. Okay, that's so they kept friendly relation with the Maharaja Ranjit Singh. And Ranjit Singh was a strong ruler. वो उस टाइम का strong ruler था. He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his state. And महाराजा रणजीत सिंह है सेट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. उसने बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी की, किसकी हेल्प से, हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर से, टू प्रोटेक्ट ऑफ हिज स्टेट, उसके स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सलामत रखने के लिए. ही हैड अटेंड विक्ट्रीज ओवर मैनी नियर बाई स्टेट्स. आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफर्ड anarchy. Governor General Sir Henry Hardinge came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with policy of interference and annexation. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर हिज डेथ, उसका डेथ हो गया. ओके, तो पंजाब सफर अनार्जी. देन गवर्नर जनरल ऑफ सर हेनरी केम इन इंडिया. वो इंडिया में आए और उसने कम्प्लीटली वो सिख को अपने अंडर ले लिया. पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ एनेक्सिस. नाउ पहले हमने सब्सिडरी पॉलिसी देखी. ओके, नाउ हियर वी विल सी एनेक्सेशन पॉलिसी. एनेक्सेशन पॉलिसी मीन्स जो राजा होता है वो राजा विदाउट हिज सन, ओके, सन के बिना वो मर जाता है, तो वो अपना राज्य वो खालसा हो जाता है. ओके, दैट इट. Now student, Dalhousie's policy of annexation. Now let's see what is the annexation policy. Who brought in our country? Dalhousie. Dalhousie हमारे कंट्री में annexation policy वो लेके आया. Annexation policy means bringing an end to the rule of native kings and bringing his state under the British rule directly. Okay, जो state rule में जो स्टेट ऑफ नेटिव किंग्स है वो अपना जो है वो ब्रिटिशर को वो दे देता है अंडर, और वो अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर डायरेक्टली आ जाता है. लाइक मिस मैनेजमेंट होता है स्टेट में, इनरिस्पॉन्सिबली होती है किंग की. ओके, अगर वो किंग मर जाते हैं उसके विदाउट सन, तो लाइक सतारा, जयपुर, झांसी हुआ ना कि अपने सन नहीं हुआ उनको, मीन्स कोई भी बेटा नहीं हुआ, तो विदाउट वारस. ओके, जो वारस होता है, वारस के बिना वो किंग मर जाता है, तो
वो राज्य वो खालसा हो जाता है। तो डेल हाउसेस पॉलिसी और एनेक्सेशन, एनेक्सेशन मीन्स खालसा करना। ओके, नाउ लेट्स सी। The aim of Wellesley policy of expansion was to unsettle the native kingdoms without using much of the British resources. The state that accepted the subsidiary alliance and considered the British as their friends. Eventually, in the absence of internal external threat, they become irresponsible and their administration started deteriorating. Okay, the outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in many princely state. एज आई टोल्ड टू यू, ओके, जो स्टेट रूलर होता है, ओके, किंग होता है, वो इनरिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अदरवाइज अपना मिसमैनेजमेंट होता है, ओके, तो उसको हटा के ब्रिटिश अपना रूल्स वहाँ पे कायम करता है। एंड दे एनेक्स देयर मैनी स्टेट अंडर द सेम एक्सक्यूज, और ऐसे एक्सक्यूज से उन्होंने बहुत सारे राज्य खालसा कर दिए, एनेक्स कर दिए। देर आफ्टर बर्मा, नाउ म्यांमार, ओके, बर्मा, उसका नेम बर्मा है, बट अभी हम कौन से नाम से उसको पहचाने जाते हैं, म्यांमार से। एंड रीजन्स ऑफ पंजाब वर ऑल्सो एनेक्स, और जो पंजाब का राज्य था वो भी खालसा कर दिया। इफ द किंग डाइड विदाउट सन, जैसे टोल्ड टू यू के किंग अपने बेटे के बिना मर जाते, उसको कोई भी संतान नहीं होती है, तो ही स्टेट वॉज एनेक्स, वो उसका स्टेट एनेक्स मीन्स खालसा हो जाता है। इन दिस वे सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा, ओके, इसमें हम दे सकते हैं कौन कौन से जो स्टेट है वो एनेक्स हो गए, मीन्स खालसा हो गए, तो सतारा है, झांसी है, नागपुर है, एक्सेट्रा, बिकम द विक्टिम्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सिस, और ये सब है वो पॉलिसी एनेक्सिस के एग्जाम्पल्स है। नाउ स्टूडेंट, Dalhousie aimed at helping the British trader to make huge profits from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produced these commodities on a large scale. Okay, Dalhousie's aim was to helping the British trader. Okay, British trader को help करने का उसका इरादा था, उसका एम था, और उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से मिलता था, टी, कॉफ़ी एंड कॉटन, जो भी एरिया में होता था वहाँ का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था, वो लार्ज स्केल में होता है। दैट्स सो ही गेट द many success in this to consolidate the British rule in India and to run the administration smoothly। और वो ब्रिटिश रूल के साथ वो अपने कॉन्सिलेटेड उसने किया, मीन्स हाथ मिला दिया, और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था वो एकदम स्मूथली हो रहा था। मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस बाय डेलहाउसी इन इंडिया, और डेलहाउसी जो है उसने हमारे इंडिया में बहुत सारे चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए। लेट्स सी विच आर द चेंजेस कौन कौन से हुए वो हम देखते हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने 1853, और पहला जो चेंज था, पहली जो खोज थी, ओके, वो क्या था, मुंबई और थाने के बीच में रेलवे लाइन आई, मीन्स रेलवे स्टार्ट हुई कहाँ, कौन से टाइम में, 1853 सीई में। तो हमारे देश में सबसे पहले रेलवे लाइन लाने का काम किसने किया था, किसने किया था, डेलहाउसी ने किया था। कौन कौन से देश के बीच में रेलवे दौड़ाई गई, मुंबई एंड थाने के बीच में, कौन से साल में, तो 1853 में। This thing you have to remember very carefully. And the modern postal system started in India, and wireless system between in India and England too was introduced during his tenure। और उसके राज में ही, उसके टाइम में ही जो पोस्टल सिस्टम थी और वायरलेस सिस्टम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में थी वो भी इंट्रोड्यूस की गई। एंड ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट विडो रीमैरिज, और उस वही था, डेलहाउसी था कि उसने एक बैन पास किया कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना है, मीन्स बच्चों का जो मैरिज होता है वो नहीं करना है, और जो विडो मीन्स विधवा होती है, ओके, उसका रीमैरिज, मगर शायद उसका पति मर जाता है तो वो जो विधवा होती है, वो जो स्त्री होती है, वो फिर से मैरिज कर सकती है, ऐसा लॉ उसने पास किया। सो इट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री, वो हमारे देश के लिए अच्छा ही था।
कि बाल विवाह हम कर नहीं सकते, ओके। और जो विधवा होती है उसका री मैरिज, उसका पति शायद मर जाता है तो वो फिर से मैरिज कर सकती है। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, और ये टाइम में इंग्लिश का एजुकेशन डे बाय डे ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा था, स्प्रेडिंग हो रहा था। एंड द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन ईयर 1857 CE, एंड इट इज़ द ग्रेट सक्सेस इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में एक बड़ी ग्रेट सक्सेस थी कि पहले के टाइम में हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ नहीं थे, पर जब से डेल हाउसी आया, ओके, डेल हाउसी ने हमारे देश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटी उसने एस्टेब्लिश की, मीन्स सेटअप किया, मीन्स स्टार्ट किया, ओके। कहाँ पे? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। कौन से टाइम में? 1857 CE में। दस three reformers were basically for the expansion of British rule and एनएस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। कह भी सकते हैं कि रेलवे लाइन चालू की, और री मैरिज, विडो री मैरिज और मैन चाइल्ड मैरिज, वो सबके साथ यूनिवर्सिटी चालू की, और सबके साथ ब्रिटिश का रूल है वो बहुत ही पावरफुल बनता गया। पर दिस इज़ द गुड फॉर आर कंट्री, उन्होंने हमारे देश पे राज तो किया, पर हमारे देश में रेलवे लाइन आई, और चाइल्ड बैन और विडो मैरिज, देन 3 यूनिवर्सिटीज़ की एस्टैब्लिश भी हुआ। नाउ although Indians benefited later on, they had to suffer a lot with the introduced the British reformers, okay। मीन्स हमारे भारत देश को बेनिफिट तो हुआ ही, मीन्स फ़ायदा तो हुआ ही, जैसे रेलवे लाइन और ये लॉ जो पास हुआ, एंड यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की, ओके, पोस्टल सिस्टम हमारे देश में स्टार्ट की, वो बेनिफिट तो हुआ, पर साथ में ब्रिटिश का जो वर्चस्व था हमारे देश में बढ़ता ही गया। नाउ स्टूडेंट, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल, ओके। हमारे देश के लोग जो थे, पीपल थे, वो सेटिस्फेक्शन नहीं थे। क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं थे? लेट्स सी। आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्शन shook द होल नेशन टेरिबल, ओके। पहले सब्सिडरी अलायंस आई, उसके बाद डेलहाउसी की जो एनेक्सेशन पॉलिसी आई, उसके बीच में हमारे लोग थे वो पिसते ही रहे, तो हमारा देश एक टेरिबल मीन्स एक डर सा गया कि नहीं, अब व्हाट विल हैपन, क्या होगा। एंड दिस रिजल्टेड इन द डिससेटिस्फेक्शन अमोंग द पीपल टूवर्ड्स द ब्रिटिश, ओके। ब्रिटिश के सामने वो डिससेटिस्फेक्शन हो गए कि नहीं, अभी ब्रिटिश हमारे सामने रूल्स करेंगे, हमारे देश में रूल्स करेंगे, तो इस सब से वो डिससेटिस्फेक्शन हुए। You must have seen the film क्रांति एंड मंगल पांडे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ आई सजेस्ट टू यू, मैं आपको एक सजेशन भी देती हूँ कि अगर आपको इस सब के बारे में अच्छी तरह से जानना भी है तो आपको क्रांति एंड मंगल पांडे, वो 2 मूवी है, वो मूवी भी आप देख सकते हो कि कैसे हमारे देश में डेलहाउसी पॉलिसी आई और कैसे ब्रिटिशर ने हमारे सामने राज किया, रूल किया। इफ़ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई एंड सी दिस मूवी। अगर आपने देखा है देन वेल एंड गुड, नहीं देखा है देन आई कैन टेल टू यू कि यू हैव टू सी इट। एट दिस टाइम द पीपल वर spread under the dictatorial regime of the British, and in addition to that the reformers made by Dalhousie added fuel to fire. Different people reacted differently to railways, facilities of post and telegraph and western education. Now see here, different people reacted differently to railways facility, post, telegraph and western education, वो सबका उन्होंने बेनिफिट तो लिया है। एंड ऑर्थोडॉक्स पीपल felt that the British wanted to destroy their culture, और बहुत सारे ने ऐसा भी सोचा कि ब्रिटिशर है उन्होंने हमारा जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय किया है, मीन्स नाश किया है, उसको ख़त्म
कर दिया है. And the reforms done by the British were basically for running the administration smoothly, and the dissatisfaction of people had reached a point of uh, saturation, and they were in the state of rebellion, which resulted in the freedom movement of 1857. Now see here, स्टूडेंट जो अनसेटिस्फेक्शन थे, ओके मिस डिससेटिस्फेक्शन पीपल थे, उन्होंने क्रांति भी करनी स्टार्ट कर दी, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया 1857 में. कि जो उनमें मान रहा था तो उन्होंने तो पोस्टल एजुकेशन कल वो सबका उन्होंने लाभ ले लिया, ओके बेनिफिट ले लिया. पर जो बोल रहे थे नहीं ये सब तो गलत है और ये सब लाके वो हमारे देश में रूल कर रहे हैं, ओके तो उन्होंने मूवमेंट करना चालू कर दिया. और वो मूवमेंट मीन्स क्रांति कब हुई 1857 में. सो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल के व्हाट इज द सब्सिडरी पॉलिसी एंड एनेक्सेशन पॉलिसी. थैंक यू वेरी मच.